बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, आज हम AR कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म पे हैं और हमारे साथ है रिदा शफकत। रिदा के बारे में तो वो खुद बताइए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि शी इज़ जस्ट एनर्जेटिक, यंग, और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये कंसल्टेंसी का काम शुरू किया। तो क्यों शुरू किया, ये क्या इंस्पायरेशन है, ये इंस्पायरेशन वो कहाँ से लेकर आई और ऐसा ख्याल उन्हें क्यों आया? जी रिदा, हाउ आर यू? शुक्रिया जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थोड़ा सा अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताएं। अच्छा, सो जैसे कि आपने कहा कि I started this at a young age. It's because I'm a recent graduate myself from Indian University. मैं UK in 2017 गई थी as a student, as an international student, वहाँ पढ़ने के लिए, and now I'm with the settled. And what was your subject on it? Biomedical engineering. Wow, that's good. So तो वापस आके आपने क्यों कहा कि जब मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ तो सारा पाकिस्तान चले गया? असल में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। Yeah, that's actually the students इसको सुनना नहीं चाहेंगे, ये बताएं। It's a very bumpy road, and especially for a student who has to manage their finances as well as going to study abroad. UK is one of the most expensive stay destination, जैसा कि हम सब जानते हैं. It's not like Germany or Austria, जहाँ पर the education is free. इन्हें मेरे जैसे बंदा ना सोचे क्योंकि बस को suggest ये बात तो very बड़ी देखी है. अच्छा ठीक है। But it's just but it has a lot of opportunities. So the reason I started this consultancy was when I went as a student, I applied to 8 universities in total. उनमें से 5 तो मैं खुद ही apply की थी because I was a beginner student and you're very well aware of how to apply to universities. But there were 3 universities that I applied to a consultant. Now my journey with the consulting was very it was good and bad at the same time. There was a lot of lack of clarity. जब मैं जा रही थी मुझे नहीं पता था consultant के charges कितने हैं. मुझे नहीं पता था मेरी UK जाके किस किस्म की expenses आएंगे. और university ये ना और consultants are like hidden something or something like that. I think what they don't tell us a lot about is that they create a very fascinating life in UK, but that is not the truth. Because there's so many extra expenses, especially given that आज की inflation में एक स्टूडेंट की बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट्स होते हैं जो कि उसमें उनको उस वक्त नहीं बता होता जब वो अप्लाई कर रहा, और ये चीज़ उसके वहाँ जाकर मजीद मसले का बायस बनती है. Okay, so why we do that? What the reason behind that? यहाँ पे आपने लिखा है कि free consultancy. तो जब आप consultancy करते हैं या आपको किसी और ने जवाब हुई, हम पूरी information क्यों नहीं देते? What's we don't know even. Sometimes honestly consultants don't know. A lot of the consultants that we have in Pakistan, they've never been outside Pakistan themselves. Or वो आपको study abroad की बहुत से issue write कर रहे हैं. So what I think that they're not well equipped to answer questions about life in UK, life in Australia. So I think partially is also to get the business, ताकि अगर student को थोड़ा सा अंधेरे में रखा जाए ना, तो शायद student अपना decision वो ही रखे कि UK जाना नहीं जाना है. लेकिन अगर उनको थोड़ी बहुत हकीकत बताई जाए तो शायद वो अपना decision change कर जाए. So just they can see it to get the best outcomes for themselves. यहाँ पर आपने लिखा कि वाइज सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी. मुझे लगता है कि 80 to 90% जो हमारा स्टूडेंट बैक पढ़ने के लिए भी जाता है, सो ही और शी डजंट नो इवन दैट कि ना यूनिवर्सिटी किस किस्म की होती है, और मेरे हिसाब से तो एजेंट बताता है या तो कंसल्टेंट बताता है, हम वही जाके एडमिशन ले लेते. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? I think it used to be a lot like that. लेकिन आज की generation are very aware. I think what I'm getting now is to allow students to know what they want. They know what university they want. They know what course they want. So it used to be the case, but the trend is changing. लेकिन फिर भी हमारे पास एक vast majority in Pakistan still don't know. तो जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें किस किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, और आप कंसिडर्ड एज ए CEO आप इसको कैसे लेती हैं, देखती हैं? So वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मसला होता है स्टूडेंट का. बहुत सारे स्टूडेंट के पास फंडिंग नहीं होती है, एंड देन डिस्पाइट दैट दे ट्राइंग टू गो टू UK बिकॉज द फेमस एक दफ़ा हम UK पहुंच जाए बाद में ज़रूरी आसानी से हो जाती है. अच्छा, ऐसा है? ऐसा नहीं है. आपको अपना एक बजट पहले साल का स्पेशली ट्यूशन फी का ज़रूर रख के जाना होता है, और अगर एम्बेसी इस चीज़ को ब्लॉक कर लेकिन यू डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा. बहुत ज़्यादा फेक स्टेटमेंट्स का मसला आता है, फेक डॉक्यूमेंटेशन का मसला आता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर वीज़ा. एक्चुअली इसमें फेक ही होती फेक या बनाने में हम ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. व्हाट्स इज अक्सर स्टूडेंट्स सब बनाते ही फेक है. फेक है व्हेन आई से फेक इट्स लाइक मोर लाइक दे होता नहीं है, देयर इज डॉक्यूमेंटेशन और सच documentation. You know, they try and create like a fake bank statement because अपना अकाउंट नहीं होता, बट डिपेंडेंट के अपना अकाउंट है. अच्छा, we can now pick it all ऐसे फॉर्स ऐसे उनके ना ही इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने होते हैं. Also, I don't think so that it's my straightforward question, either my student review. तो जब तक कि हमारे पास अच्छी हैंडसम अमाउंट ना हो तो हम ना जाएं.
I would say कि अगर आपके पास इतने resources नहीं कि आपकी there's a lot of scholarships part of it that scholarship भी discussion with that. उसके बाद अगर आपके पास इतनी मिलती है, अगर आपके पास अपनी जितनी ट्यूशन होती है, अगर आपके पास तो अपने अकाउंट में कि आपके पास वो पे करने की कैपेसिटी नहीं है, then I would definitely reconsider, because what I wouldn't recommend कि आप UK चले गए और आपके पास टीचर से पैसे नहीं आ रहे और आप वहाँ जाके stuck है. A recent issue that I would like to bring up about UK students is कि वहाँ जाके students debt में आ रहे, they're unable to pay their tuition fees. उसकी वजह से उनकी deadlines मिस हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी डिग्रीज इशू नहीं कर रही. But I think for that's what you are talking about, that is even right. But mostly of the students, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से जाते हुए पढ़ना तो शायद उनके उसमें होता नहीं. This is the second option. So that is even something like that. Obviously, I can't give a exact percentage, but I would say at least 70% on SAE जिसका मतलब पढ़ना नहीं है. And even अच्छा फिर मेरा अपना आपसे अगला क्वेश्चन है और वो भी बड़ा क्रिटिकल है, but that is on the like कि आप वहाँ फंसी आप रही हैं वहाँ पे, you know about very well about that. तो मुझे ये बताइए कि ये तो यूके वालों को भी पता है कि पाकिस्तानी and Indians and like especially the Asian peoples are coming for that. तो why they allow to them? They are allowing from we pay a lot more than a most student. It's a business for you. अरे आप उनकी सिर्फ IHS की देखें, it used to be £600, they will raise it to £1,000 now. तो इसका मतलब है for annum आप जब UK रुकेंगे £1,000 हर साल आप सिर्फ IHS की करेंगे. So that's a lot of benefits for them as well. So because in the thing there's nothing, वो progressive country मुझे लगता है इसलिए कि वो हम जैसे developed country से अच्छे ऐसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ जो हमारे ऊपर बैठे हुए वो वैसे भी पैसा यहाँ से बाहर ट्रांसफर कर लेते हैं. It's okay, but specifically now I will talk because I'm one of the like मुझे पता है कि IELTS that's a very big problem in Pakistan. मेरे पास students आते हैं और कहते हैं कि जी सर जी कोई ऐसा तरीका है कि IELTS ना ये तो ऐसे चली जाएगी. And what don't you tell to the students like कि IELTS is very important और ये जो fake तरीके हमने इख्तियार किए रास्ते जाने के लिए कि जी ठीक है, तो क्या कहती हैं आप IELTS में किस तरह की प्रॉब्लम है? When you went, how was your IELTS? Because one of our students, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास students लो उस standard. For me personally मुझे IELTS देना नहीं पड़ा था because I had a really good grade in English, तो उन्होंने मुझे IELTS deduction नहीं थी. That's the case for a lot of students, पर जैसा कि आपने कहा जो FSC students होते हैं, a lot of students होता है English level up to the mark पे नहीं होता है. Students पसंद ही नहीं करते IELTS देना because we always have this at the back of their mind to fail away. What I would like to advise them कि just understand कि आप एक English speaking country में जा रहे हैं, तो despite the fact कि आपको IELTS देना है नहीं देना, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, how will you get educated in an English country? तो I would say कि IELTS से बिल्कुल मत घबराएं, take it as a challenge, do it before you leave for UK. अपना obviously it will help your application, but also your stay in the UK because you will know how to talk and speak. The question is that it was like about the IELTS scholarship. किस तरह के students को मिलती है और क्या criteria? Overall scholarships, so our international bursaries or scholarships काफ़ी ज़्यादा देता है, but one of the misconceptions is कि वो fully funded होती हैं. They're not fully funded. They will be, for example, when I was a student, I got £5,000 scholarship, or that at that time brought my fee down to about £6,000, which was quite affordable at that time. So there are some students get based on their grades, which I did, मुझे अपने grades की basis में थी, लेकिन कुछ students को overall portfolio like sports और उनकी जो extra curriculars है उनकी भी आप पे भी मिलती है. And there are some early bird scholarships जो कि अगर आप university पे एक certain amount of time में apply करें या आप उनकी side issue पे advance में भी करें, तो उस तरह की scholarships दी students को ऐसे. That's good. The most question that the students asked on the consultant, you should tell something about that, कि जब आप जाने से पहले उस जाने के बाद यानी कि what do you say about that कि स्टूडेंट्स आपके पास आते क्या एडवाइस करेंगी, जाने से पहले क्या होना चाहिए और अराइवल जब आप वहाँ चली जाती तो किस किस्म की जो वो आपको कराएं? तो जाने से पहले I would say firstly make sure you done your research. Don't go to a country not knowing what you're signing up for. अपनी पूरी research करें. When I went, I didn't even know how much a taxi should cost, right? And that's why I was thinking when a consultancy started, because हम students to the point when they think about it, और जब वो UK आ जाते हैं उनको jobs चाहिए होती है, we're trying to help them every step of their way because we know how it is. तो जाने से पहले make your full research. आप यूनिवर्सिटी से घर तक कैसे जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कॉस्ट क्या होंगे, एडिशनल कॉस्ट क्या होंगी, कोर्स फी के अलावा एडिशनल जो आपकी बुक्स वगैरह खर्चात हैं वो क्या होंगे. और जाने के बाद I would say make sure you avail each and every opportunity. हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जाके क्या करते हैं कि they get busy in jobs and making money. लेकिन आप एक इंटरनेशनल इवेंट में पढ़ने ही इसलिए गए हैं ताकि you can get that global experience. So I would say get involved in societies, get involved in extracurricular activities, make the most out of that experience ताकि आप एक कामयाब पाकिस्तानी बन सके, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो सके,
जिसके लिए आपने इतनी फीसें भरी हैं, जिसके लिए आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में गए हैं। आप भी तो वैसे गई थी, मुझे लगता है कि जैसे आपने क्यों नहीं सोचा कि वहाँ करना है? आप वापस आके पाकिस्तान स्टूडेंट्स की खिदमत कर रही हैं और आप ये एयर कंसल्टेंट्स के जरिए, तो ये कैसा जज्बा रहा ये सब? It's because आप एक बार शादी कर लेती, मुझे तो लगता है आपसे कोई भी कर ले। मुझे ना अच्छा, ये हम सोचते थे कि हमारे यहाँ लड़की जाती पूरी है, देखते हैं हमारे यहाँ की लड़की जाती है तो गोरा। And they fit. And so what's your experience about? I'm married, by the way, and I'm also married to a Pakistani, but he's based in UK. But he's based in You Pakistan. got him over there or? I met him over there. लेकिन the thing is कि आपने क्वेश्चन किया था उसके बारे में। क्वेश्चन ये किया था कि आप क्यों वापस आती है खिदमत का जज्बा लेकर पाकिस्तान में? यहाँ पे तो आजकल लोग बात बात रहे, ठीक है ना? आप वो बात से आ गई हैं और आप बैठी नहीं कीजिए, हम पाकिस्तानी खिदमत करेंगे। आजकल के तो जो हालात है मेरे ख्याल से सब कह रहे कि आती ही ले जा। It's because I mean the first year portfolio to universities, right? I was the elected president of Students' Union, and what I've seen in a lot of Pakistanis के हमारे वो तो जिन लोग आ रहे हैं या वहाँ से proper procedure है और उनको proper guidance नहीं है in terms of have to life कैसी होगी, उनकी क्या आगे की ज़िंदगी कैसी देने की लाइफ चाहिए। तो I feel like अगर मुझे कहीं जाकर सब guide करना है तो I think the first deserving country is Pakistan, क्योंकि I'm Pakistan, I love my country and I want to make sure कि हमारे साथ जितने students जाते हैं they're either aware of what they're signing up for, and honestly, just because I'm a consultant में लोग ये नहीं कहते कि आप UK ही जाएं। अगर मुझे लगता है उनके UK जाने बेनिफिशियल नहीं है, I straight away tell them कि आप 10 लाख लेके UK नहीं जा नहीं जैसे और अगर आप पहुँच भी रहे तो आप वहाँ जाके सिवाय क्वारी के कुछ नहीं करेंगे। तो I want to be that person who tells them कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बीइंग अ कंसल्टेंट जो है ना, हमारे यहाँ पे तो आते हैं ना, तो वो कहते हैं जी स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है कि बस वो आगे तो उनको जाने दी। सो डू यू थिंक कि आप अपने कंसल्टेंट्स जो आपसे लेने आएगा स्टूडेंट्स, आप ये बात बताएंगे कि डोंट हो ओवर दिस? Of course, we have a lot of students who told us, I had running out at school and there were a lot of students who were coming for मेरे पास lesson, even जिन लोगों ने मुझे कहा बस 30 से 40 लाख का बजट afterwards and you will have to increase your budget. But yeah, otherwise it's not possible कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर अगर आप उन्हीं students में जो कि debt में पड़ गए हैं, tuition fee based pay कर पाए, you would be surprised that there is an issue of starvation as well in some students who are unable to pay their tuition fee. So I cannot be that consultant who actually puts people in that scenario. So I will guide them clearly कि हम इस पैसों में आप यहाँ मलेशिया चले जाए, उसके अलावा जर्मनी चले जाए, जो और ममालिक हैं। मलेशिया जर्मनी बाकियों को भी आप कंसल्टेंट? जी जी, do you know like more than 7 countries including Dubai, Australia, Canada, Malaysia. Sure. ओके नदीन, हाउ टू रीच एयर कंसल्टेंट्स, इन सब कैसे पहुँचना है? और इनसे अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो हम इनके नंबर्स और इनके जो है जो इंस्टा पे हैं, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ तक आप उनको कर सकते हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर जो है उसको नोट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली, इवन इफ यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस, शी विल आंसर यू, बट बिकॉज शी हैज़ अ ग्रेट टीम, वो आपको उसका आंसर करेगी एंड यू कैन फिजिकली इवन। सो वुड यू एडवाइस सम लाइक स्टूडेंट्स आजकल जो रुझान है कि बाहर भागना है, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट बैक टू their country. So what would you say about this scenario, like to the students who are going over there? Okay, अच्छी तालीम हासिल करना अगर आपके पास है, ये सबका फर्ज है, लेकिन आप इस सिनेरियो में क्या करें? इसका जवाब जो मैं देना चाहूँगी वो तो ये है कि पढ़ के वापस आप अपने कंट्री के अंदर स्किल्स लेके आए। However, what I am also aware of is कि पाकिस्तान में इस वक्त पे opportunities थोड़ी lack है। अगर student ना पैसा लगा के बाहर से डिग्री लेके आते हैं, they want the job to be worth their while. तो go for the best opportunities for yourself, groom yourself best, but never ever leave Pakistan fully. किसी भी तरीके से अगर आप आके अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं, चाहे वो अपने स्किल्स के थ्रू है, चाहे वो ओपन बिजनेस, whatever you can, make some use out of Pakistan as well after graduation. Another year that I would like to say you, मैं आपको ये कहूँगा और उर्दू में कहूँगा कि मैं वो से कंसल्टेंट से मिलना, मुझे ऐसी एनर्जेटिक और ऐसी लोग बहुत कम मिलते हैं जो रेल में पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी के बुक करना चाहते हैं, वरना everyone is like doing something for the sake of money or for their business or something like that. So at the end हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया इनसे इन तक अप्रोच करनी हो, so that's very easy, you can approach to her. Anything you want to like advise to the nation in this scenario and this condition of Pakistan? I would just like to say don't take everything for granted. Work hard for your future and make sure that you don't have any regrets with your things. जी नाज़रीन, आप जो ख्वाब देखते हैं उसके लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, हम इजाज़त देते हैं इस प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।